Welcome back to our channel NEET Mantra. I am Prince Sharma, your biology faculty and mentor. So students, in this video we are going to have a quick revision of chapter chemical coordination and integration. If you missed our previous videos, link is in the description, and for more videos like this please do subscribe to our channel. So what is chemical coordination? I am giving you a detailed definition, so listen very carefully. It is the type of coordination present between the cells or different organ within the body of multicellular organism. In this kind of coordination, a group of cells release specific chemicals which regulate the activities of other cells of the body. So here they are saying, in this type of coordination, a group of cell representing endocrine gland release specific chemicals, and specific chemicals are referring to hormones. So chemical coordination is carried out by the hormones. Now I am discussing some of the properties of hormones. These are secreted by endocrine gland, as I mentioned above. Endocrine gland lack ducts, that's why they are known by the name of ductless gland, and this is the reason they dump their secretion directly into the blood. But here is an exception. Some local hormones like gastrin are not directly dumped into the blood. Hormones are carried to distant located specific organ and they are known by the name of target organ. तो hormones जहाँ पे बनते हैं वो वहीं पे एक्ट नहीं करते हैं, वो दूर के जो ऑर्गन्स हैं उन पे जाके अपना इफेक्ट दिखाते हैं, और जिन ऑर्गन्स पे वो इफेक्ट दिखाते हैं उनको टारगेट ऑर्गन बोला जाता है. Hormones have very low molecular weight. For example, ADH, anti-diuretic hormone, has molecular weight of 600 to 2000 Dalton, which is very low. Hormone act in very low concentration, or you can say they are produced in trace amount. For example, if I give you the data, they are in concentration like 10 raised to power minus 10 molar, which is a very low concentration. And hormones are non-antigenic in nature. Okay, these are some of the main properties of hormone. Next we have human endocrine system. ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन्स होते हैं, ठीक है. और जो हार्मोन्स हैं वो सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड से ही सिक्रेट नहीं होते, कुछ और ऑर्गन्स हैं जैसे कि लिवर, किडनी, हार्ट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वहाँ से भी हार्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाइपोथैलेमस, विच इज ऑल्सो गो बाय द नेम ऑफ मास्टर ग्लैंड और हेडमास्टर ग्लैंड. It contains neurosecretory cells which are known by the name of nuclei, which produce hormone which regulate the synthesis and secretion of pituitary hormone. So हाइपोथैलेमस जो है उसमें न्यूरोसिक्रेटरी सेल प्रेजेंट होते हैं और उनको हम न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं, और वो कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके हार्मोन्स के सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को कंट्रोल करता है. देयर आर टू टाइप ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन. वन इज रिलीजिंग हार्मोन एंड अदर इज इनहिबिटरी हार्मोन. सो रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, एंड इनहिबिटरी, as it is very evident by the name, inhibit the secretion of pituitary hormone. So here are some of the releasing hormone like growth hormone releasing hormone GHRH, thyrotropic releasing hormone TRH, corticotropic releasing hormone CRH, and gonadotropin releasing hormone GnRH. In inhibitory hormone we have growth hormone inhibitory hormone, or commonly you can call it somatostatin, and the other is prolactin inhibiting hormone PIH. Now this is the system between hypothalamus, pituitary and other endocrine gland. So basically hypothalamus is working as a headmaster gland. So hypothalamus give information, or you can say hormone give information to pituitary gland, and then pituitary gland रेगुलेट ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी. तो हाइपोथैलेमस हार्मोन जो है वो क्या है, बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं और उनके जो हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. तो बेसिकली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या है, सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका हाइपोथैलेमस. और किन दो हार्मोन से कर रहा है, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन से. नाउ वी टॉक अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड. It is situated in a bony cavity known as sella turcica
and it is attached to hypothalamus by stalk. Pituitary gland is divided into two parts, adenohypophysis and neurohypophysis. Neurohypophysis is commonly known by the name of posterior pituitary, and adenohypophysis is subdivided into two parts, pars intermedia and pars distalis. So pars distalis is commonly known by the name of anterior pituitary. You must remember this. These can be asked in your NEET examination. Now we talk about anterior pituitary hormone. Hormone releasing from anterior pituitary, I written them on one side, and from which hypothalamic hormone they are controlled is written on other side. So growth hormone have both positive and negative feedback of GHRH and GHIH. Thyroid stimulating hormone TSH is regulated by thyroid releasing hormone. Adenocorticotropic hormone is regulated with the help of corticotropin releasing hormone. Gonadotropin like LH and FSH are regulated by GnRH, and prolactin is regulated by PIH, prolactin inhibiting hormone. The symbols are representing whether they are having a positive feedback or they are having a negative feedback. Next we look at growth hormone. It is responsible for body growth and normal development of all the body parts in a human. Now we are dealing with some of the diseases which are caused due to the abnormal presence of growth hormone in the organism. First is zygantism or zygantism. It is due to the hyper secretion of growth hormone in childhood. तो अगर चाइल्डहुड के टाइम पे, बचपन के टाइम पे ग्रोथ हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीट हो जाए तो वो zygantism को या zygantism को प्रमोट करता है. तो इसमें अगर आप देखना चाहें तो खली जो है वो इसका एक प्राइम एग्जांपल है. नेक्स्ट वी हैव acromegaly. It is due to the hyper secretion of growth hormone in adult. You must remember, in adult, which lead to irrational body growth. Okay, irrational body growth means physical deformities होंगी, ठीक है, abnormal large tongue होगी, कुछ लोगों में एक्रोमेगैली में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी देखने को मिलता है मेल्स में, और फीमेल्स में इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन होता है. ओके, और द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्रोमेगैली इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर इन पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, नेक्स्ट वी हैव ड्वार्फिज्म. ड्वार्फिज्म इज ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ GH ग्रोथ हार्मोन लीड टू स्टंट ग्रोथ. तो अगर आपकी बॉडी में या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या है, ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट हुआ है तो वो ड्वार्फिज्म को लीड करेगा. और इसका एक एग्जांपल कहीं बुक्स में मेंशन होता है, जो मिडगेट्स होते हैं आपके सरगस में, वो ड्वार्फिज्म के कारण उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है. नेक्स्ट वी हैव प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड. ये मेमोरी ग्लैंड की जो ग्रोथ है उसको क्या है, रेगुलेट करता है और उनमें फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करवाता है. ऑब्वियसली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इज देयर. Next we have thyroid stimulating hormone. It stimulates synthesis and secretion of thyroid hormone from thyroid gland, as it is very evident from this name. Next we have ACTH. It stimulates and synthesis the secretion of steroid hormone from adrenal cortex. Okay. Next we have LH, luteinizing hormone. In male, it stimulates and secretion of androgen from testis. And you very well know androgen is secreted from Leydig cell or interstitial cell. In females, it induces ovulation. A term used in human reproduction chapter, that is LH surge. Okay, जब LH सबसे ज़्यादा होता है तब ovulation होता है. Next we have FSH, follicular stimulating hormone. In male, it regulates spermatogenesis with androgen, and in female इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल. तो अगर आपने ये पढ़ा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर तो आपको अच्छे से पता होगा कि फॉलिकल डेवलपमेंट कैसे होता है. प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल में फ्लूइड फिल्ड कैविटी हो जाती है जिसको एंट्रम बोलते हैं. ओके, ग्रैन्युलोसा सेल, वो सब आपने वहाँ पे पढ़ा होगा. नेक्स्ट वी हैव पार्स इंटरमीडिया. इट सीक्रेट MSH विच इज नोन as melanocyte stimulating hormone. It act on melanocyte present in our skin and regulate the pigmentation of our skin. तो ये जो हार्मोन है हमारी बॉडी में पिगमेंटेशन लाता है और
ऐसा माना जाता था कि या माना जाता है कि जैसे आप धूप में जाते हैं तो ये स्टिमुलेट हो जाता है और आपकी स्किन कंपैरेटिवली डार्कर हो जाती है अगर आप घर के अंदर बैठे हुए हैं तो। नेक्स्ट वी हैव पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इट सीक्रेट ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ ADH, ओके, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस हार्मोन इन आर एक्सक्रीटरी चैप्टर। ये कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर का। जब जो आपका बॉडी फ्लूइड है उसमें वाटर की कमी होती है तो ये कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करवाता है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल से एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑल्सो। सो oxytocin act on smooth muscle of body and induce contraction and it is responsible for the childbirth। तो जब fetal ejection reflex होती है, जब 9th मंथ पूरे हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, तो ये क्या है, ये जो हार्मोन है ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाता है और जो आपका फीटस है या बेबी है जो फुली डेवलप्ड हो गया उसको मदर की बॉडी से बाहर पुश करने की कोशिश करता है। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको, प्रोलैक्टिन मिल्क बनवा रहा है, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्ट करवा रहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव वैसोप्रेसिन, it act on kidney as I told you, I mentioned it earlier. It is for the reabsorption of water and sodium by distal convoluted tubule. Next we have pineal gland, it is located on the dorsal side of forebrain. If you watched our skeletal system video, you have a pretty good idea about forebrain. It secrete melatonin hormone। जो pineal gland है ये एक melatonin hormone क्या करता है, आपका सिक्रीट करता है। एंड इट रेगुलेट डाययूरिनल रिदम ऑफ द बॉडी, स्लीप वेक साइकिल इज मेंटेन बाय दिस एंड बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन बाय दिस। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस पिगमेंटेशन एंड डिफेंस कैपेबिलिटी। तो इसके बहुत सारे वर्क हैं। ये आपकी स्लीप वेक साइकिल को, जो नॉर्मली आप रात को सोते हैं दिन में उठते हैं, उसको मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, आपके पिगमेंटेशन को मेंटेन करता है। एंड इट इज़ एंटागोनिस्ट टू मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये आपके इम्यून सिस्टम को भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। तो बहुत सारे बच्चे पहले के सारे चीज़ें याद रखते हैं पर इम्यून सिस्टम या डिफेंस कैपेबिलिटी वाला ऑप्शन भूल जाते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव थायराइड ग्लैंड, इट कंसिस्ट ऑफ 2 lobes located on either side of trachea. If you watch my respiratory system video, you have pretty good idea about trachea. Both of these lobes are interconnected by connective tissue and which is goes by the name of isthmus. The lobes is composed of follicles and stomatal tissues. Follicles secrete 2 type of hormone, T4 और T3. T4 is tetraiodothyroxine and T3 is triiodothyroxine. T4 का जो एक्शन होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है पर इसकी जो एक्टिविटी होती है वो थोड़ी स्लो होती है। T3 क्या है, जो टाइम पीरियड होता है वो क्या है, कम होता है पर इसकी एक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। एंड आयोडीन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस हार्मोन, क्योंकि आयोडीन इनका इंटीग्रल पार्ट होता है, एज यू कैन सी इन देयर नेम आयोडोथायरोक्सिन है ना। ओके। सो अगर आपकी डाइट में आयोडीन नहीं है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा और जिससे जो ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाएगा और आपको एक डिजीज़ हो जाएगी जिसको गोएटर बोलेंगे। नेक्स्ट वी हैव क्रिटिनिज्म, इट इज़ ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिफेक्ट डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ बॉडी लीडिंग टू स्टंट ग्रोथ। तो जैसे कोई फीमेल है वो क्या है, प्रेग्नेंट है और उस टाइम उसको क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, थायराइड जो हार्मोन है थायराइड ग्लैंड से सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बन पाया, तो जो उसका फीटस है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि उसमें मेंटल रिटार्डेशन रहेगी, लो IQ रहेगा, ओके, ठीक है, एबनॉर्मल स्किन रहेगी, डेफ म्यूटिज्म रहेगा, ओके, है ना, और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो इसी बीमारी को क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म बोलते हैं। और ये किससे होती है कि अगर जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो, ओके। नेक्स्ट वी हैव हाइपरथायरॉयडिज्म, सो ड्यू टू द कैंसर और फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर इन थायराइड ग्लैंड, है ना, क्या होता है, जो सिक्रीशन होता है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज एंड इसी को हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, ओके। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, इट रेगुलेट आर BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, सपोर्ट प्रोसेस ऑफ RBC फॉर्मेशन, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, मेंटेन वाटर एंड
इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो कई बच्चों को ये डाउट होता है कि BMR क्या होता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या होता है। तो बेसिकली एक ह्यूमन को जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, उसी को बेसिक मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। और यही थायराइड हार्मोन क्या करता है, रेगुलेट करता है। नाउ वी हैव थायरोकैल्सिटोनिन TCT. It is secreted by parafollicular cells of thyroid gland. It is a protein hormone and it regulates blood calcium level. Next we have parathyroid gland. 4 parathyroid gland present on the back side of thyroid. तो अगर आप थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको 4 क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड मिलेंगे। They secrete PTH and it is a hypercalcitonin hormones. मीन्स ये क्या है, जो ब्लड है उसमें क्या है, कैल्शियम का लेवल क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। और जो थायरोकैल्सिटोनिन है वो इसके बिल्कुल अपोजिट वर्क करता है। ओके, तो PTH इज़ एंटागोनिस्ट टू TCT। तो आप एक का फंक्शन याद कर लीजिए कि पैराथायरॉयड जो पैराथॉर्मोन है वो क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ करता है। अब ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ करेगा तो बेसिकली बोन से तोड़ के लाएगा, और बोन से जो कैल्शियम ये तोड़ के लाता है उसको डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन बोलते हैं। सो बाय इंड्यूसिंग डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन इट इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड एंड TCT डज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ इट। नेक्स्ट वी हैव थाइमस. It is a lobular structure located on dorsal side of heart and aorta. It secretes thymosin gland and which play a major role in differentiation of T lymphocyte. तो ये हमारे T lymphocyte को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो आपकी होती है उसके लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। पर ये क्या है, बहुत कम एज तक रहता है ना। उसके बाद ओल्ड इंडिविजुअल में ये बिल्कुल ही डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है थाइमस के बारे में कि आपके T लिम्फोसाइट के डिफ्रेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट वी हैव पैनक्रियाज. पैनक्रियाज इज़ अ मिक्स्ड ग्लैंड. ओके, वाई आई एम सेइंग मिक्स्ड ग्लैंड, बिकॉज इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट दोनों होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनके पास डक्ट्स होती है। ओके, तो पैनक्रियाज के पास अपनी डक्ट भी है, और ये क्या है, इसका थोड़ा सा पार्ट 1 to 2% पार्ट क्या है, एंडोक्राइन भी है। और उस एंडोक्राइन पार्ट को, द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज इज नोन बाय द नेम ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस एंड विच कंसिस्ट सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल which are alpha cell, beta cell and delta cell. Alpha cell secrete glucagon, beta cell secrete insulin and delta cell secrete somatostatin, and you very well know the function of somatostatin by now. Okay, so what is the function of glucagon? Glucagon is a hyperglycemic hormone, means it increase glucose in the blood. Okay, so glucagon convert stored glycogen into glucose with the help of glycogenolysis. Okay, so इट क्या करता है, ये ग्लाइकोजन को तोड़ता है और ब्लड में क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ करता है। इंसुलिन बिल्कुल इसका उल्टा है। इंसुलिन जो इसका छोटा भाई है वो बिल्कुल इसका उल्टा है, वो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। ये क्या करता है, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल और ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में। तो इस तरीके से ये ग्लूकोज होमोस्टेसिस, मतलब ग्लूकोज का जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो अगर आप खाली पेट हैं तो आपका ग्लूकोज लेवल 100 होना चाहिए, और अगर आपने खाना खाया है तो आपका 150, और मैक्सिमम खींच के, है ना, ज़बरदस्ती भी अगर आप अपने आप को नॉर्मल करना चाहें तो 180 तक होना चाहिए। और ये कौन से हार्मोन्स मेंटेन करते हैं, ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। जैसे आपने कुछ नहीं खाया है ना, और आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम है, तो ग्लूकागोन क्या करेगा, स्टोर्ड ग्लाइकोजन को तोड़ के आपको ग्लूकोज देगा जिससे आप सर्वाइव कर सको। ओके, अब क्या हुआ, आपने खूब सारा मीठा खा लिया है ना, या फिर बहुत सारा कार्ब खा लिया आपने, और ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत स्पाइक कर गया, तो इंसुलिन क्या करेगा, उसको कम करेगा और स्टोर कर देगा किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, दोनों को ही कम करता है। अगर दोनों, अब क्या है, इंसुलिन और ग्लूकागोन तो क्या है, आपस में लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे का क्या है, जैसे मान लीजिए आप दो भाई हैं या भाई बहन है या बहन बहन है, आप दोनों आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को उल्टा काम करते हैं।
पर अगर आप दोनों ही आप आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगे तो क्या करते हैं, मम्मी या पापा आपको क्या करते हैं, बिल्कुल कंट्रोल में ला देते हैं। तो सोमेटोस्टेसिन यही करता है, दोनों की ही सिक्रीशन अगर ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो उसको कम कर देता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अ डिजीज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। इट इज़ ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स, आई एम सेइंग इंडेक्स। अगर आपकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा समय के लिए अगर आपका ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग में, मतलब बिना कुछ खाए या खाली पेट 100 से ज़्यादा आ रहा है कंटिन्यूस, है ना, ओके, कभी कभी आ सकता है किसी कारण की वजह से, पर अगर कंटिन्यूस ज़्यादा आ रहा है और खाने के बाद आपका 200 से 250 तक ब्लड ग्लूकोज लेवल जा रहा है, तो ये बीमारी आपको हो सकती है, जिसको आप डायग्नोस करवा सकते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया। तो जो आपकी यूरिन है उसमें क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट होगा या फिर कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट होंगी। और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इंसुलिन थेरेपी की मदद से इसको ठीक कर सकते हैं। तो जब आप डॉक्टर बनेंगे, MBBS करेंगे, तो ऐसे बहुत सारे केस आपको मिलेंगे, क्योंकि डायबिटीज़ भी टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। एक टाइप में आपको क्या है, मेडिसिन पिल्स देनी होती है, एक टाइप में आपको डायरेक्ट ग्लूकोज करना होता है। तो ये आप आगे जाके सीखेंगे। नेक्स्ट वी हैव एड्रिनल ग्लैंड। ऑब्वियसली अगर आपने किडनी पढ़ी है तो आपको पता है कि रीनल फेशिया जो होती है उसके अंदर एड्रिनल ग्लैंड भी होता है और किडनी भी होती है। और किडनी के ऊपर एक प्याज की तरह स्ट्रक्चर रखा रहता है, जिसको क्या है, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी उसको बोलते हैं। किडनी की तरह इसमें भी दो रीजन होते हैं, वन इज़ मेडुला एंड अदर इज़ कॉर्टेक्स। So we called cortex region adrenal cortex and it secrete corticoids and adrenal medulla secrete adrenaline and non-adrenaline। adrenaline को आप एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हो, नॉन एड्रेनलिन को आप नॉन एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हो। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट एड्रेनल मेडुला। इट secrete catecholamines। So adrenaline or non-adrenaline are basically catecholamines. You must remember this. It can be asked, and it is known by the name of emergency hormone, fight flight hormone. Okay, so effect of catecholamines: it increase alertness, pupil is dilated, hair are raised in this, sweating, heart rates increase, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज एंड लिपिड एंड प्रोटीन ब्रेक डाउन। तो बेसिकली आप इनके इफेक्ट को समझ सकते हैं कि आपको क्या है, डॉग से डर लगता है और क्या है, डॉग आपके पीछे भागता है, तो उस वक्त आपके जो भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, आप भाग रहे हैं, है ना, ठीक है, आपकी अलर्टनेस बढ़ी हुई है, ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो गया, रेस्पिरेटरी इंक्रीज़ हुआ, तो वो बेसिकली इन्हीं हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो एक एमरजेंसी सिचुएशंस है आपके लिए। ये एक बेसिक एग्जांपल है, और भी एमरजेंसी सिचुएशंस हो सकती हैं। नाउ वी लुक एट एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल कॉर्टेक्स। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लेयर, इनर, मिडिल, आउटर। इनर वन इज़ नोन बाय द नेम ऑफ जोना रेटिकुलोसा, मिडिल वन इज़ जोना फेसिकुलेटा एंड आउटर इज़ जोना ग्लैमरुसा। ओके, जो रेटिकुलोसा रीजन है वो एंड्रोजेनिन स्टीरॉयड सिक्रीट करता है, बेसिकली एंड्रोजन सिक्रीट करता है। ओके, जोना फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है, एग्जांपल है कॉर्टिसोल, और आउटर वाला सिक्रीट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन। सो अब हम इनके फंक्शन देख लेते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इट स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। इट इनिबिट द सेलुलर अपटेक ऑफ अमीनो एसिड, क्या है, अमीनो एसिड का अपटेक रोक देते हैं। नेक्स्ट वी हैव कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल गिव एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एंड इट सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स, है ना, एग्जाग्रेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, अगर ज़रूरत से ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है उसको सप्रेस कर देते हैं, और कई बार इसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोला जाता है। एंड एल्डोस्टेरोन वी हैव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन। Next we have androgenic steroids. It are responsible for growth of axial, pubic and facial hormone. And one additional information I like to give here: in teenage females, androgenic steroids, this hormone is responsible for pimples. Okay. Next we have testes. As we all know, दे आर प्रेजेंट इन स्कोटल सैक ऑफ मेल। और वहाँ पे क्यों रखा गया है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो 2 से 2.5 डिग्री क्या रहे, कम रहे, और जो क्या करता है, फेवर करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिंग सेल वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो एंड्रोजन बनाते हैं, जो कि एक प्रीकर्सर है टेस्टोस्टेरोन का। ओके, एंड्रोजन एक्ट ऑन CNS एंड इन्फ्लुएंस लिबिडो। लिबिडो
हम डिस्कस कर चुके हैं। आपका जो लिबिडो होता है, आपके जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है, सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, वो आपका लिबिडो होता है ना, ठीक है। एंड इट हैज़ ए एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो देखा होगा जब मेल्स में प्यूबर्टी हिट करती है तो धीरे धीरे उनका जो मस्कुलेचर है वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि ये एक एनाबॉलिक इफेक्ट लाता है उनमें, है ना, ठीक है। नेक्स्ट वी लुक एट ओवरी। अगर आप इनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया है। ओवरी आर ओबियसली इन द पेयर एंड दे आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑफ फीमेल, है ना, एंड दे प्रोड्यूस 2 स्टीरॉयडल हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओके, तो जो मेनली फीमेल्स होती हैं जब तक प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ईस्ट्रोजन क्या है, डोमिनेंट रहता है। ओके, ईस्ट्रोजन ज़्यादातर आपको फीमेल के ब्लड में ज़्यादा ही मिलेगा, है ना। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर प्रोजेस्टेरोन भी रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, पर आप देखिए अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तो प्रोजेस्टेरोन एक बहुत लंबे समय तक के लिए ब्लड में रहेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कंपैरेटिवली ईस्ट्रोजन डोमिनेंट रहता है, ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोजेस्टेरोन एब्सेंट रहेगा। ओके, आफ्टर ओव्यूलेशन ओवेरियन फॉलिकल्स, तो ये हमने वहाँ भी डिस्कस किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो फीमेल की हम एक आइडियल साइकिल मान लेते हैं 28 डेज़ की। 14th डे ओव्यूलेशन होता है, ग्राम्फियन फॉलिकल्स में से सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है और उसको फीमेल कैच कर लेती हैं और वो क्या है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। अब जो बचा हुआ फॉलिकल है उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं और वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, सस्टेन करेगा, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता रहेगा, जिससे प्रेगनेंसी में सपोर्ट होता रहेगा, ठीक है। और अगर प्रोजेस्टेरोन रहेगा तो क्या है, ये एल्वेलाई में डिफ्रेंशिएशन करवाएगा मेमरी ग्लैंड्स में, क्योंकि अब प्रेगनेंसी हो गई है तो अब क्या है, मिल्क की रिक्वायरमेंट होगी। अदर ऑर्गन विच सिक्रीट हार्मोन जैसे कि हार्ट, एट्रियल वॉल्ट ऑफ हार्ट सिक्रीट एट्रियल नेट्रिटिक फैक्टर, जिसको ANF भी बोल सकते हैं। तो क्या हुआ, ये हमने एक्सक्रीशन चैप्टर में भी डिस्कस किया था। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया बॉडी में, तो क्या है, एट्रियल वॉल क्या करेंगे, ANF सिक्रीट करेंगे, ब्लड वेसल का डायलेशन होगा और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बेसिकली हाइपरटेंशन से काउंटर करने के लिए ये हार्मोन होता है ना। नेक्स्ट वी हैव किडनी। किडनी में JG सेल्स होते हैं जो क्या है, पेप्टाइड हार्मोन इरिथ्रोपोएटिन सिक्रीट करते हैं, और इरिथ्रोपोएटिन क्या करता है, स्टिमुलेट इरिथ्रोपोएसिस, और वो क्या करता है, इन रिस्पॉन्स फॉर्मेशन ऑफ RBC। ओके, नेक्स्ट वी हैव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो यहाँ पे गैस्ट्रिन सिक्रीट हो रहा है जो गैस्ट्रिन ग्लैंड पे एक्ट करता है, और HCl और पेप्सिनोजन बाद में पेप्सिन बनेगा और प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा। सिक्रेटिन एक्सोक्राइन पेनक्रियाज पे वर्क करता है और इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट। देन वी हैव cholecystokinin CCK. It act both on pancreas and gallbladder and stimulate the secretion of pancreatic enzyme and bile juice. तो आप जानते हैं कि गॉल ब्लैडर लिवर से निकलने के बाद बाइल जूस कहाँ जाता है, गॉल ब्लैडर में जाते हैं फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट वी हैव गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इट इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है तो उसको ये रोकता है। नेक्स्ट वी हैव ग्रोथ फैक्टर, non-endocrine tissue which secrete hormone. These are essential for normal growth of tissue and their repairing and generation. तो कुछ नॉन एंडोक्राइन टिश्यू हैं जो ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करते हैं, और ये क्या है, नॉर्मल ग्रोथ की, टिश्यू की नॉर्मल ग्रोथ और रीजनरेशन और रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट हम कुछ हार्मोन्स का नेचर देख लेते हैं। तो इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन एंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन आर पेप्टाइड और प्रोटीन इन नेचर। Cortisol, progesterone, estradiol represent estrogen, and testosterone are steroidal hormone. Iodothyamines are thyroid gland obviously, and amino acid derivatives are epinephrine. So you must remember this, it can be asked. Okay, now we look at the mechanism of hormone action. Hormone bind to specific protein receptor called hormone receptor and produce their action. तो हार्मोन भैया स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर से ही बाइंड करते हैं और क्या है, अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हार्मोन्स रिसेप्टर से बाइंड करेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है, द कॉम्प्लेक्स विच इज़ फॉर्म्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू रिसेप्टर इज नोन एज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ओके, सो
हार्मोन रिसेप्टर्स सेल के मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं या इंट्रासेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन हार्मोन जो है वो मेम्ब्रेन रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, एंड स्टीरॉयड एंड आइडोथायरोनिन्स क्या है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको याद होनी चाहिए, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट वी लुक एट बोथ द मैकेनिज्म साइड बाय साइड। तो हॉर्मोन्स हैं वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड कर रहे हैं, जो मेम्ब्रेन वाले हैं वो मेम्ब्रेन रिसेप्टर से बाइंड कर रहे हैं, और इंट्रासेलुलर क्या है, न्यूक्लियस में उनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ जाके वो बाइंड करते हैं, और दोनों में ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। अब अंतर क्या है दोनों में, जो इंट्रासेलुलर है यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट नहीं होते इन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, और this effect secondary messengers are not developed, but in membrane bound receptors secondary messengers are developed like AMP, IP3 and calcium ion. Then these secondary messenger will regulate सेलुलर मेटाबॉलिज्म, और इनकी वजह से ही क्या है, रिस्पॉन्स आएगा। पर जो हार्मोन क्या है, न्यूक्लियस के रिसेप्टर से जाकर डायरेक्टली बाइंड करते हैं, वो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट डायरेक्टली करते हैं, उनमें कोई सेकेंडरी मैसेंजर नहीं होता, और उसी की वजह से उनका फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट आता है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस यू मस्ट रिमेंबर कि इन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, एंड इन इंट्रासेलुलर रिसेप्शन देयर इज नो सेकेंडरी मैसेंजर present. So this is the video guys. If you like this video, please share this video and like and subscribe to our channel, and please support us for better content. Thank you very much.